Hello guys, today we are going to discuss a very new topic, circular economy. Basically, the scholars and think tanks of 20th century thought that we have to reduce the consumption of inputs for industrial production. So they put the concept of circular economy in 1970s. Basically, a circular economy is a model of production and consumption which involves the sharing, leasing and recycling of existing materials and products as long as possible. इसमें हम चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ करते हैं फॉर आवर डेली नीड्स मतलब उनको हम वेस्ट नहीं बनाते बल्कि उनको हम दोबारा यूज़ में ले आते हैं. सो सर्कुलर इकोनॉमी इज़ करंटली अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, as sustainable development is a backbone of any state. Basically, sustainable development is a mode of development that meets the needs of the present without the compromising the ability of future generation to meet their own needs. Basically, the circular economy. Now, with the circular economy type transitions, they are now started by the European Union as well. It is a rough estimated by the European Union in 2014. They assume that with the gain of circular economy, they can create 600 billion euros annual by using the mode of circular economy. Similarly, various international economic organizations estimated that the global economy would be benefit 1,000 billion US dollars annually if they use the model of circular economy. Now, the China was the first country in the world that adopted a law for the circular economy in 2008. Now, what are the principles of the circular economy? First principle is a waste is equal to food. Now, what is this waste is equal to food? That this principle stands for the continuous cycling of materials and products. Now, a product that is no longer used should not become a waste, but instead should be the part of new cycle of use. Now, कि वेस्ट को बस ऐसे फेंक न दें बल्कि उसको दोबारा यूज़ करें ताकि उससे कोई नई चीज़ बने फॉर आवर डेली नीड और यूज़. Now, second principle in circular economy is resilience through diversity. Now, what is this? Basically, by single product or a waste, we can create so many other things. This can fulfill our needs without wasting our resources. हम resources को कम से कम इस्तेमाल करके उससे जो वेस्ट होते हैं उसको दोबारा रीयूज़ करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं. There are examples we can discuss further. Now, third principle is energy from renewable resources. हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए. लाइक सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल पावर आर द मेजर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लाइक ये रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होने वाले, सो हमें इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज़ थिंक इन द सिस्टम. इन मैन मेड सिस्टम वी कैन there are some changes, we make some changes which can lead to the unexpected changes. Like हम बस यूज़ करते रहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. इससे क्या होता है, इससे एक तो फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि लिमिटेड हैं ये कम हो रहे हैं और फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हम क्या फेस कर सकते हैं, देयर कुड बी लाइक कार्बन एमिशन. तो उससे हम क्लाइमेट चेंज फेस करेंगे. तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आती हैं हमारे अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से. तो हमें we should think in the system. This is a principle of circular economy. Now, what the benefits circular economy are giving to us? First is the circular economy aims for zero waste. एक हमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलता है, हम इसे कम से कम वेस्ट बनाते हैं. क्योंकि हम वेस्ट को रीयूज़ करके उससे नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. वेस्ट को रीयूज़ करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते. नाउ इससे का और बेनिफिट क्या है? We can lower the carbon emission as well, as carbon emission is a major source of climate change और global warming. उससे ये होगा कि कार्बन एमिशन कम होगी तो हम एक जो
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज फेस करते हैं वो कम हो जाएगी। सिमिलरली इट ओपन्स अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज़ नई से नई चीज़ें बनाएंगे और उससे एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल क्या करता है, इट्स रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म होने वाले हैं उनको हम लीस्ट पे ले आएंगे। और इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक इससे हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा, इससे हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो मतलब एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट होता है इससे। Some example are if we are implementing the circular economy model. So China, first example is China. In 2012, China proclaimed 12th 5 years plan. 12वां मतलब 5 साल का उन्होंने प्लान एक दिया, किस लिए? फॉर द नेशनल इकोनॉमी टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी इन चाइना। एक एग्जांपल है जेम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये शंजन में है। इट बेस्ड ऑन द कंपनी ऑफ रिसाइकल्स ऑफ द मटेरियल, रिसाइकलिंग केमिकल और दूसरी मटेरियल्स को ये यूज़ करते हैं, रीयूज़ करके उससे नई चीज़ें बनाते हैं फॉर देयर टू फिल देयर डेली नीड्स। Similarly, Pakistan is also following the model of circular economy in several ways. For example, the ex-government उन्होंने एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। क्या किया कि प्लास्टिक को, इट वाज द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग इन पाकिस्तान, लाइक उन्होंने प्लास्टिक को यूज़ किया एक रोड बनाने के लिए। दिस वाज इन इस्लामाबाद खियाबान सोहरवर्दी के गवर्नमेंट ने एक फ़र्स्ट एवर प्लास्टिक रोड बनाया इन इस्लामाबाद। सिमिलरली इस तरह यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूएस में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लिवाइस क्या करते हैं, ये इनका एक सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है। इन्होंने एक बास्केट रखी होती है जिसमें पीपल क्या करते हैं, अपनी पुराने जो पैंट्स और शर्ट्स और क्लोथ्स वगैरह हैं वो उसमें डालते हैं, वो उनको यूज़ करके न्यू क्लोथ्स बनाते हैं उनके लिए, लाइक वो उनको वेस्ट नहीं होने देते। सिमिलरली यूरोप में है रिजाइनटिक्स प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन का, ये केमिकल्स को रीयूज़ करते हैं और क्लोथ को रीयूज़ करते हैं। नाउ कम ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। Circular economy is a linear economy to the circular economy. What is happening in linear economy? We use things and we then product become waste. थिंग्स को हमने यूज़ किया, उसका जो वेस्ट हुआ वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं, मतलब वो उसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं करते। तो सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि आप प्रोडक्ट ही ऐसी बनाओ जो रिसाइकल हो, उसको आप रीयूज़ करके तो आप कुछ नया बनाएं फॉर योर डेली एक्टिविटीज़। सिमिलरली तो सर्कुलर इकोनॉमी का ये है, तो वी शुड, इट इज़ द नीड ऑफ टाइम to think that we should move from linear economy to the circular economy. Now, second thing is global awareness and cooperation. It is a vital and necessary. It is a need of today world. Why? जब अभी लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी की अवेयरनेस ही नहीं है। जब आप अवेयरनेस देंगे लोगों को तो स्टेट्स क्या करेंगी, स्टेट्स एक दूसरे को ऑपरेट करेंगी और वो भी फॉर एग्जांपल नाउ यूरोपियन यूनियन इज़ फॉलोइंग द मॉडल, चाइना इज़ फॉलोइंग द मॉडल विद द कोऑपरेशन ऑफ अदर स्टेट्स, तो दूसरी स्टेट्स भी इसको फॉलो करना शुरू कर देंगी। और जब दूसरी स्टेट्स को फॉलो कर देंगी तो एक नेचुरल बैलेंस जो है वो नेचर का क्रिएट रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। नाउ इसमें गवर्नमेंट्स का रोल है, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इज़ अ मेजर एंड बैकबोन। हर मुल्क की, हर स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी इनिशिएटिव ले सर्कुलर इकोनॉमी के, तो वी कैन डील सेवरल ग्लोबल चैलेंजेस एंड एज वेल।